Hello guys, welcome you all in our next topic. Now in the last lecture we have seen the question number 1 and 2 from the exercise number 1.1 of mathematical logic. Let us see the question number 3. Write the truth values of the following. We have to write the truth values of some given statements. First one, first example, 4 is odd or 1 is prime. 4 is odd or 1 is prime. So we know that 4 is an even number. Let P is the statement, 4 is odd, Q is another statement, 1 is prime. If we see 4 is odd, therefore P has truth value true, therefore P is false, P is false, and Q is also false. So both P and Q has the truth value false. So therefore we have symbolic form. What is the symbolic form of this statement? It is P join Q. It will be 4 is odd number, it is false, join false, and that is false itself. So truth value of this compound statement, it is false one. Next example, second example, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. 64 is a perfect square. 64 is a perfect square and 46 is a prime number, and 46 is a prime नंबर. हमें पता है ये दो स्टेटमेंट्स का कंपाउंड स्टेटमेंट्स है, इसको स्प्लिट अप करना है, दो सिंपल स्टेटमेंट्स में स्प्लिट अप करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, उसके बाद हमें उसका ट्रुथ वैल्यू लिखना है. याद रखने हैं, हर एक स्टेप हमें इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट अप दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इनटू टू सिंपल स्टेटमेंट्स. सो P विल बी द स्टेटमेंट. व्हाट इज P? क्या आएगा भाई? 64 is a perfect square. 64 is a perfect square. That is the first part of the compound statement. What will be Q statement? It is 46 is a prime number. 46 is a prime number. So if we see 64 is a perfect square, है ना भाई? अगर हम देखेंगे 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 8 का स्क्वायर 64. So it is true statement. And what about 46? 46 is an even number. So it is not a prime because 46 has so many dividers, we can say. So the symbolic form will be symbolic form. क्या आएगा इसका? It is P. Here we have given and, so meet Q. P meet Q. P has truth value here. P is, what is P? Perfect square. It is true statement. P is true, and Q is, what is the value of Q? Q is false. And therefore P meet Q, it will be क्या आएगा? P is true. So truth value of P is true. हम वहाँ पे substitute कर देंगे, meet as it is, and Q is false. And we know that truth value of conjunction. What is the truth value of conjunction? If both the statements are true, then and then only the conjunction is true. So true and false, that will be false, and which is the truth value of the given compound statement.
Let us take the third one. What the third example says, see, 5 is a prime number. 5 is a prime number and 5 is a prime number and 7 divides 94. 5 इज अ प्राइम नंबर. देखिए एग्जाम्पल फिर से बहुत ध्यान से पढ़ना है. 5 इज अ प्राइम नंबर, येस इट इज ट्रू वन, एंड कंजंक्शन है 7 डिवाइड्स 94. वो हमें देखना है डिवाइड करता है या नहीं करता है. पहली स्टेज क्या करते हैं हम लोग, इसको स्प्लिट करते हैं दो सिंपल स्टेटमेंट्स में. चलिए फिर लेट व्हाट विल बी पी स्टेटमेंट. क्या आएगा पी, 5 इज अ प्राइम नंबर, that is the statement P. What will be Q? Q is, yes, 7 divides 94. So क्या आएगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, बताइए भाई. सिंबॉलिक फॉर्म P and Q, so it will be P meet Q. P meet Q. So truth value of P here, P is, what is P? 5 is a prime number है क्या, yes 5 prime number होता है. So 5 is prime number, so P is true statement and Q is, yes it is false because 7 divides 94, but actually if we see 7 94 को डिवाइड नहीं कर सकता है. So that is false one. So therefore the truth value will be P meet Q, that is P is true, meet or and we can say, and Q is false. So true and false, that goes to false straight away. So लिख देंगे वैल्यू false. आप अपने नोटबुक्स में नोट कर लीजिए. चलिए लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल. व्हाट इज फोर्थ एग्जाम्पल, इट इज नॉट ट्रू दैट, फोर्थ वन, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i is a real number. बहुत ध्यान से पढ़िएगा. इट इज नॉट ट्रू दैट, ये सच नहीं है क्या, ये रियल नंबर है. अभी सीधी सी बात है, हम अगर देखेंगे 5 minus 3i कौन सा टाइप का नंबर है भाई, इसका अगर देखेंगे इमेजिनरी पार्ट है, आय आ गया. सो सीधी सी बात है ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. अभी 5 minus 3i इज अ रियल नंबर, इट इज फॉल्स वन बिकॉज इफ वी सी, ये पार्ट छोड़ दीजिए थोड़ी देर, यहां से आगे सोचिए. 5 minus 3i is a real number. It is not real actually because there is imaginary factor. So as this 3i is there, it is a complex number. So this statement is wrong, means false. 5 minus 3i is a real number. This statement is false. अगर ये false है तो इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, it is not true means false का negation हो गया. ये फॉल्स था, इसका निगेशन हो गया. बहुत सीधी सी बात है, एक ही स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ के उसके बाद हमको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है. सो एक ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, फिर भी ये निगेशन दिया हुआ है. सो स्टेटमेंट कैसे आएगा, लेट P इज द स्टेटमेंट 5 minus 3i is a real number. 5 minus 3i is a real number and P is, what is truth value, it is false. As P is false, therefore symbolic form is क्या आएगा, negation of P. ये जो है ये हमारा गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया. एंड देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू
what will be the truth value? Negation of p means negation of p का truth value क्या था? False, and that is true. Truth value is true. Next one, fifth example. बहुत सीधे सीधे एग्जाम्पल्स हैं, इजी है. इफ 3 into 5 is equals to 8, if 3 into 5 is equals to 8, then 3 plus 5 is equals to 15. Then 3 plus 5 is equals to 15. अभी if then यूज किया हुआ है, so सीधी सी बात है. कौन सा टाइप है? कंडीशनल स्टेटमेंट है. So first of all let's split. Let P is the statement 3 into 5 is equals to 8 and Q is the statement 3 plus 5 is equals to 15. So and P is, what is truth value of P? 3 into 5, 3 into 5. Actually 3 into 5 is 15 but here is given as 8. देखिए भाई 3 गुना 5 15 हो जाता है 15. यहाँ पे दिया हुआ है 8. सो ये रॉन्ग है. इसका मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा फॉल्स. एंड Q इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q 3 plus 5 कितना हो जाता है? 3 में 5 मिला दिए 8 हो जाता है. अभी यहाँ पे दिया है 15. सो ये भी रॉन्ग है. सो Q इज फॉल्स. सो P एंड Q बोथ आर फॉल्स. देखते हैं अभी सिंबॉलिक फॉर्म इज क्या आएगा. सिंबॉलिक फॉर्म इसका इफ देन यूज किया है, सो P इंप्लाइज Q हो जाएगा एंड देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैसा आएगा? ये हो गया हमारा P इंप्लाइज Q. P का ट्रूथ वैल्यू था फॉल्स, Q का ट्रूथ वैल्यू अगेन फॉल्स. यस, कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें पता है पहला स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो उसका कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज वो तो ट्रू होता है. सो यहाँ पे दिया है फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, ये ट्रू नहीं है. सो आंख बंद करके लिख सकते हैं इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज ट्रू हो जाएगा. इट इज ट्रू. सो नेक्स्ट वन, सिक्स्थ एग्जाम्पल. मिल्क इज वाइट. Milk is white if and only if sky is blue. अभी यहाँ पे if and only if यूज किया हुआ है. सो फिर से वही स्टेप्स फॉलो करते हैं. P स्टेटमेंट इज मिल्क इज white. Q statement sky is blue. P is milk is white. ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? ट्रूथ वैल्यू तो लिख देंगे उसका ट्रू है. मिल्क वाइट ही होता है ना, सबने देखा है. ट्रू. Q is yes, sky is blue. Yes, it is blue. Q is true. So both truth values are true. Both truth values are true. So the symbolic form कैसे आएगा? Symbolic form is क्या हो जाएगा? If and only if यूज किया हुआ है. So P if and only if Q means double headed arrow and the truth value. चलिए भाई truth value लिखना है. So P double implication Q, that is yes. P का ट्रूथ वैल्यू क्या है? P का ट्रूथ वैल्यू है ट्रू. इफ एंड ओनली इफ Q का भी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू. डबल इम्प्लीकेशन है, हमें पता है डबल इम्प्लीकेशन में दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स अगर सेम ट्रूथ वैल्यू के हो तो वो ट्रू हो जाता है, अदरवाइज फॉल्स. यहाँ पे दोनों के दोनों सेम ट्रूथ वैल्यूज आ गई. सो ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू. समझ में आ रहा है? समझ लीजिए इफ एंड ओनली इफ यूज किया हुआ है. 5 के 5 कनेक्टिव्स का ट्रूथ वैल्यू याद रखिए. कंजंक्शन का याद करेंगे तो दोनों के दोनों ट्रू आएंगे तो कंजंक्शन ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स है. डिसजंक्शन के बारे में क्या कहेंगे? दोनों के दोनों फॉल्स आ गए, फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू है. निगेशन के बारे में क्या कहेंगे? ट्रू का निगेशन
फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का निगेशन ट्रू हो जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में क्या कहेंगे, पहला ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू। और डबल इम्प्लीकेशन के बारे में क्या कहेंगे, बाय कंडीशनैलिटी, हाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स सेम ट्रूथ वैल्यू हो गई तो वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। सो दोनों सेम आ गई सो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स रहता, यहाँ पे दोनों सेम है तो ट्रू हो जाएगा। एंड लास्ट एग्जाम्पल फ्रॉम दिस क्वेश्चन, दैट इज 24 is a composite number or 17 is a prime number. 24 is a composite number or 7 is a prime number. देखिए 24 कंपोजिट नंबर है और डिसजंक्शन 7 प्राइम नंबर है, दोनों के दोनों ट्रू लग रहे हैं। So first of all, let's first stage, P is the statement, 24 is a what? Yes, it is composite number। Q के बारे में क्या कहेंगे, 7 is a prime number। क्या आएगा उसका सिंबॉलिक फॉर्म, yes सिंबॉलिक फॉर्म 24 इज अ कंपोजिट नंबर, ये हो गया P। और मतलब जॉइन, 7 इज अ प्राइम नंबर सो फॉर्म P जॉइन Q। हियर P इज ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, 24 इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज ट्रू, P इज ट्रू। एंड व्हाट अबाउट Q, Q इज ऑल्सो ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू हो गए, सीधी सी बात है। So truth value is, truth value कैसे आएगा भाई, P join Q, P क्या था, P तो true है, true, Q क्या है, join, Q क्या है, true, true join true, हमें पता था। डिसजंक्शन, दोनों के दोनों false, डिसजंक्शन इज false, दोनों में से कोई एक ट्रू आ जाएगा, ट्रू। अभी यहाँ पे तो दोनों के दोनों ट्रू है, so truth value will be true। So that is the question number 3 from this exercise. Write down in your notebooks. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट्स P Q R आर ट्रू। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, P Q R आर ट्रू एंड आगे क्या दिया हुआ है, सॉरी P एंड Q आर ट्रू, R एंड S आर फॉल्स, R, S आर फॉल्स। देन फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। P और Q दोनों के दोनों ट्रू है, R और S दोनों के दोनों फॉल्स है, तो कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनके ट्रूथ वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट कंपाउंड स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, फर्स्ट P और Q एंड R। सो इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है हमें, दिया हुआ है P Q दोनों ट्रू है, R S दोनों फॉल्स है, सीधी सी बात है। सो लेट्स टेक द कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q एंड R। यस, P का ट्रूथ वैल्यू क्या दिया हुआ है, ट्रू, और Q का ट्रूथ वैल्यू अगेन ट्रू एंड R का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। डायरेक्टली हमें क्या करना है, सभी के सभी स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है कंपाउंड स्टेटमेंट में। देखते हैं क्या आता है ट्रूथ वैल्यू, ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स। कंजंक्शन में दोनों ट्रू तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, ये दोनों ट्रू नहीं है, सीधी सी बात है, डायरेक्टली ये क्या लिख सकते हैं, फॉल्स। अभी ट्रू और फॉल्स, डिसजंक्शन दोनों ट्रू, डिसजंक्शन दोनों फॉल्स देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, सो इट इज ट्रू। That is the truth value of the first compound statement. Second one, P implies Q or
R implies S. Yes. So करते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. इट इज P implies Q और R implies S. P का ट्रूथ वैल्यू ट्रू implies Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू और R का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स implies S का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स. कुछ नहीं करना है, बस जो ट्रूथ वैल्यू दिए हैं सब्स्टिट्यूट कर देना है. उसके बाद यूजिंग द रूल्स ऑफ और 5 कनेक्टिव्स वी हैव टू फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज. सो क्या आएगा? ट्रू implies ट्रू. हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये भी कंडीशनल है, ये भी कंडीशनल है. यस, कंडीशनल स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट ट्रू आएगा, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स आएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू. सो ट्रू implies ट्रू, इट विल बी ट्रू. और अगेन फॉल्स implies फॉल्स, it is again true. So true joined true is true. That is the truth value of the given condition compound statement. Third one, Q and R or negation P and S. Q and R or negation P and S. So let's take the compound statement. Let's take Q and R or negation P and S. Q का ट्रूथ वैल्यू दिया हुआ है ट्रू एंड R is false or negation of P is true. So negation of true means and S का ट्रूथ वैल्यू क्या दिया है? फॉल्स. लिख दिए है ट्रूथ वैल्यू, कुछ नहीं किया. P की जगह पे P का ट्रूथ वैल्यू, Q की जगह पे Q का ट्रूथ वैल्यू, ऐसा सभी स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यू हमने लिख दी है. अभी देखते हैं उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आता है. सो ट्रू एंड फॉल्स कंजंक्शन है, दोनों के दोनों ट्रू, देन इट इज ट्रू. दोनों ट्रू नहीं है तो आंख बंद करके लिख सकते हैं इसको फॉल्स. और निगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स एंड फॉल्स एज इट इज. यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया, ये निगेशन ट्रू का वैल्यू लिख दिया यहाँ पे फॉल्स. इतना ही चेंज किया हुआ है, याद रखिए, बाकी एज इट इज है. सो फॉल्स और अभी फॉल्स एंड फॉल्स हमें पता है दोनों ट्रू तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स हो जाता है. सो फॉल्स और फॉल्स जॉइन फॉल्स इज अगेन फॉल्स. सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ लेट्स टेक द फोर्थ वन. P implies Q meet negation R. Fourth one, P implies Q and negation of R. P implies Q and negation R. So let's take P implies Q and negation of R. P truth value of P is true, implies Q का truth value true लिख दिए एंड निगेशन ऑफ R का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स. R का ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स दिया हुआ है, गिवन है. सो इट इज इक्विवेलेंट विथ इफ देन कंडीशनल स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू आएगा, सेकेंड फॉल्स आएगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. सो इट विल बी डायरेक्टली ट्रू एंड निगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है. फोर्थ वन. Fifth example, negation R if and only if P. Fifth one, negation R if and only if P implies negation Q. Let's solve. Let's take negation of R if and only if P implies negation of Q. डाल दीजिए ट्रूथ वैल्यू सभी के सभी. negation of R का ट्रूथ वैल्यू क्या है? R is false. negation of false if and only if P is true
implies negation of q is true, implies true. So ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? negation of false is true, ये if and only if true, implies negation of true is it is false. क्या हो जाएगा? ट्रू इफ एंड ओनली इफ ट्रू, सेम ट्रूथ वैल्यूज बाय कंडीशनैलिटी. डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है? दोनों के दोनों सेम आ जाएंगे तो वो डबल इम्प्लीकेशन ट्रू हो जाता है. सो इट इज ट्रू implies false. Yes, it is conditionality. True implies false is false itself. So truth value of that statement is false. Sixth example, sixth one, negation P and negation Q and R negation P and negation Q and R or Q and R or P and R, Q and R or P and R. So let's take, yes, negation P and negation Q and R or Q and R और P and R. ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा भाई? negation of P is given as true and negation of Q is also true and R is false, or Q is true and R is false, or true and false, true and false. P is true, R is false. Q is true, R is false. P is true, R is again false. So truth value, negation of true is false and negation of true is false and false. सीधी सी बात है. निगेशन ऑफ ट्रू, ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. यहाँ पे भी ट्रू का निगेशन फॉल्स हो जाएगा. ये फॉल्स एज इट इज रखा है हमने, और ट्रू एंड फॉल्स इट इज फॉल्स, और अगेन ट्रू एंड फॉल्स इट इज फॉल्स. क्या लिख सकते हैं? फॉल्स एंड फॉल्स इट इज फॉल्स, join false or false it is false. So that will be directly false or false, and that is false, which is the truth value of the sixth statement. So seventh and eighth example you have to solve at home for practice. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, write the negations of following. निगेशंस लिखने हैं. पहला एग्जाम्पल बहुत सीधे सीधे हैं. तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश. फर्स्ट वन, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश. वो ट्रू है फॉल्स है इसके बारे में सोचना नहीं है.
डायरेक्टली हमें उसका निगेशन लिखना है। दिया हुआ है तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। सो गिवन द स्टेटमेंट P, what is P statement? Tirupati is in Andhra Pradesh. So what will be negation? Yes, while making negation of any statement, we use the word not in Andhra Pradesh. We use directly not here. Tirupati is not in Andhra Pradesh. Just we have used that extra word not there in the example. Second one. Second. 3 is not a root of equation. 3 is not a root of equation, and equation is given to you x square plus 3x minus 18 equals to 0. x square plus 3x minus 18 equals to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अभी बोला है 3 is not root of this equation, x square plus 3x minus 18 equals to 0. So given the statement P, what is the statement? 3 is not root of equation. Yes, it is x square plus 3x minus 18 equal to 0. ये दिया हुआ है, so negation of P will be, yes, 3 is, we delete this word root of equation x square plus 3x minus 18 equals to 0. नॉट था, नेगेटिव स्टेटमेंट था, उसको हमने पॉजिटिव कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? निगेशन ऑफ निगेशन इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। याद रखिए, निगेशन ऑफ निगेशन इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। हमें एक नया स्टेटमेंट मिल गया, नया रूल मिल गया। क्या? निगेशन का निगेशन करेंगे। अभी ये नॉट था तो ये निगेशन था, निगेशन का निगेशन करना था तो वो नॉट रिमूव कर दिया हमने, तो हमें पी स्टेटमेंट मिल गया। सो निगेशन ऑफ निगेशन इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। थर्ड वन, √2 इज अ रैशनल नंबर। √2 is a rational number. So let's write down the answer of this question also. क्या आएगा? Given the statement P, what is the statement? √2 is a rational number. निगेटिव करना है, क्या कर देंगे उसको? Therefore its negation of P is √2 is not a rational number. Not a rational number. Not यूज कर दिया भाई। ये not a rational, इसका एक और फॉर्मेट आ सकता है। कैसे? √2 is an irrational number। हमने क्या किया? नॉट यूज कर दिया तो नॉट अ रैशनल, इसका मतलब होता है इरेशनल। नॉट अ रैशनल का मतलब इरेशनल। सो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, √2 इज एन इरेशनल नंबर। फोर्थ वन, पॉलीगॉन ABCDE, polygon ABCDE is a pentagon. Polygon ABCDE is a pentagon. So again we have given the statement, given P, polygon ABCDE is a pentagon. कैसा करेंगे निगेशन इसका? Therefore negation of P is polygon ABCDE is, we can use here the word not a pentagon. हो गया निगेटिव।
नॉट यूज कर दिया निगेटिव हो गया, नॉट था उसको रिमूव कर दिया वो भी निगेटिव हो गया, नॉट था उसको रिमूव कर दिया वो भी निगेटिव हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं विच इज द लास्ट वन, फिफ्थ एग्जांपल। 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5। 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5। चलिए गिवन द स्टेटमेंट P 7 + 3 is greater than 5. So negation P, what will be negation of P? That is 7 + 3 greater than था ना, यहाँ पे नॉट तो लिखेंगे नहीं, तो नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5। और कैसा लिख सकते हैं negation P 7 + 3 is less than or equals to 5। मैथमेटिक्स से भाई यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, हम हमारा इमेजिनेशन पावर के हिसाब से लिख सकते हैं। 7 + 3 ग्रेटर देन 5 था तो निगेशन में हम लिख सकते हैं नॉट ग्रेटर देन 5 और लेस देन और इक्वल्स टू 5, ये भी उसका निगेटिव ही आता है। सो दिस 5 एग्जाम्पल्स आर देयर इन द क्वेश्चन नंबर 5। दैट्स ऑल फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑफ द चैप्टर लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक। देखिए सबसे पहली बात है कि हमें एग्जाम्पल्स बार बार सॉल्व करने हैं, बार बार देखने हैं, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें अच्छे से वो चैप्टर याद आएगा, अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं। कुछ नहीं है, 5 कनेक्टिव्स है, निगेशन लिखने की बात है तो सीधे सीधे उसके ट्रूथ वैल्यूज लिखने की बात है। तो हम एक के बाद एक टॉपिक अगर कवर करेंगे, ठीक से हम उसको पढ़ेंगे तो हमें 100% वो समझ में आ जाएगा। So this is all from the exercise number 1.1. In the next lecture we will see the next topic, logical compound statements and all these things. Thank you very much. Hello guys, welcome you all again in our next topic. Let's see statement pattern. Statement pattern. स्टेटमेंट पैटर्न हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.1, अभी वो ख़त्म हो चुका है। अगला टॉपिक जो है स्टेटमेंट पैटर्न। देखिए हमने कुछ कनेक्टिव्स देखे थे, PQR जैसे कुछ स्टेटमेंट्स के नोटेशंस देखे थे। जो स्टेटमेंट हम डिनोट करते हैं वो जो लेटर्स है PQR, ये लेटर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट लेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट लेटर बोलेंगे। मतलब PQR जो है हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर कॉल्ड द स्टेटमेंट लेटर्स। दीज आर कॉल्ड द स्टेटमेंट लेटर बिकॉज लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट्स। सो स्टेटमेंट लेटर्स। अभी हमने 5 कनेक्टिव्स पढ़े थे, मीट था, जॉइन था, निगेशन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। ये लॉजिकल कनेक्टिव्स थे। ये क्या थे, 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स थे। अभी द प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ, सुनिए याद से, प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट लेटर्स एंड कनेक्टिव्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट पैटर्न। इट्स कॉल्ड अ स्टेटमेंट पैटर्न। मतलब हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके, ऑलरेडी तो ये पढ़ चुके हमने, क्या, स्टेटमेंट लेटर्स और कनेक्टिव्स का कॉम्बिनेशन। हमने 5 टाइप्स के कॉम्बिनेशंस तो ऑलरेडी पढ़ लिए। सो दीज ऑल वेयर स्टेटमेंट पैटर्न्स। अभी स्टेटमेंट पैटर्न का जो ट्रूथ वैल्यू होता है, स्टेटमेंट लेटर आता है, कनेक्टिव हम यूज कर देते हैं। स्टेटमेंट लेटर का मतलब स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू कनेक्टिव के साथ ज्वाइन कर देते हैं, मीट मतलब उसका कॉम्बिनेशन कर देते हैं। उसके बाद उसका हमने ट्रूथ वैल्यूज भी लिखा था। सभी स्टेटमेंट्स पैटर्न के उसके जो स्टेटमेंट लेटर्स है और कनेक्टिव्स है, इसके कॉम्बिनेशंस के जो ट्रूथ वैल्यू होते हैं उसके हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमने फाइंड किए थे ट्रूथ टेबल्स ऑफ कंजंक्शन, डिसजंक्शन, बस वही बात। तो उसको जो है द टेबल शोइंग द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स और द स्टेटमेंट पैटर्न्स, ये टेबल को बोलते हैं ट्रूथ टेबल। टेबल्स रिप्रेजेंटिंग ट्रूथ वैल्यू
of statement patterns are called, क्या बोलेंगे इसको, इसको ट्रुथ टेबल बोलेंगे। ट्रुथ वैल्यू जिसमें आएगा वो क्या हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया। सो टेबल रिप्रेजेंटिंग द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न, सो दैट इज कॉल्ड एज द ट्रुथ टेबल। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ट्रुथ टेबल भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बिकॉज हमने कंजंक्शन का ट्रुथ टेबल देखा था, डिसजंक्शन का देखा था, निगेशन का देखा था। 5 के 5 कनेक्टिव्स हमने जब पढ़े थे उसके साथ हमने ये टेबल्स भी पढ़ लिए थे। सो ये हो गया ट्रुथ टेबल। अभी ट्रुथ टेबल तैयार करते वक्त ट्रुथ टेबल कैसे फॉर्म करना है, इसको भी कुछ लॉजिक है, याद रखना। हाँ, ये फार्मूला है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये फार्मूला आपको फॉलो करना है। अभी टेबल आ गया मतलब इसमें कुछ नंबर ऑफ रोज आ गए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी आ गए। टेबल कैसा तैयार करना है, याद रखिए, नंबर ऑफ रोज इन ट्रुथ टेबल, कितने रोज लेंगे ये हमें याद रखना है। नंबर ऑफ रोज आर गिवन बाय 2 raised to नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, फार्मूला है 2 raised to नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। अभी एक स्टेटमेंट है, सो 2 raised to 1 हमने देखा था निगेशन में, 2 raised to 1 दैट इज 2 मीन्स 2 नंबर ऑफ रोज। 2 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, 2 है, कंजंक्शन था, डिसजंक्शन था, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट था और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट था, उसमें मिनिमम 2 स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो 2 स्टेटमेंट्स अगर आते हैं तो 2 raised to 2 मीन्स 4, सो 4 नंबर ऑफ रोज आर देयर। एंड अगर 3 स्टेटमेंट्स हो, so 2 raised to 3 means 8 number of rows are there. So there is the rule to create the number of rows of the truth table. So while writing the truth values we require some things to remember. कुछ चीज़ें हमें याद रखनी हैं। उसमें अगर एक स्टेटमेंट है, so 2 raised to 1 2 number of rows, तो उसको तोड़ देने का 2 जगह पे, 2 रोज है तो उसमें एक ट्रू आएगा, दूसरा फॉल्स आएगा, 50% ट्रू 50% आर फॉल्स। हाउ वी राइट द ट्रूथ वैल्यूज, दैट इज ऑल्सो टू बी बाय द लॉजिक। 2 raised to 2 मीन्स अगर हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट पैटर्न में 2 स्टेटमेंट्स है, सो हमारे 4 नंबर ऑफ रोज आएंगे, तो उसको भी तोड़ देने का 50% में। सो 4 में से 2 ट्रू आएंगे, 2 फॉल्स आएंगे। उसके बाद 2 raised to 3 स्टेटमेंट्स अगर एक आधा लॉजिकल स्टेटमेंट पैटर्न रिप्रेजेंट करता है, सो 3 स्टेटमेंट आएंगे तो उसके 2 raised to 3 मीन्स 8 नंबर ऑफ रोज आएंगे। अगेन उसको हमने डिवाइड करना है 50% में, सो 4 नंबर ऑफ वैल्यूज आर ट्रू एंड रिमेनिंग 4 आर फॉल्स। सो कीप इन माइंड 2 raised to number of statements. And how we find the number of rows? To find the number of rows in a columns in a given compound statement, number of columns are given by number of columns in a truth table are given by number of statements, letters, number of statements or statement letters plus number of connectives used, number of connectives used, जितने लेटर्स हमने यूज किए हैं PQR प्लस उसमें मिला देने का कितने कनेक्टिव्स हमने यूज किए हैं, मीट ज्वाइन जो भी होगा, एंड और ये 5 कनेक्टिव्स जो है इनमें से कितने कनेक्टिव्स हमने यूज किए हैं और कितने स्टेटमेंट्स यूज किए, दोनों मिला के जितना आएगा उतने नंबर ऑफ कॉलम्स वो ट्रूथ टेबल में आएंगे। ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है व्हाइल क्रिएटिंग द ट्रूथ टेबल्स ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न्स। ओके, नाउ वी सी लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंस मतलब सिमिलैरिटी, उसमें कुछ सेम हो, सिमिलैरिटी हो, सो इक्विवेलेंस। सो 2 different kind of statement patterns are given to you. 2 different statement patterns if represents the same truth tables. अभी ट्रूथ टेबल सेम है, इसका मतलब ट्रूथ टेबल का जो मेन लास्ट कॉलम होता है जो कि हमारा स्टेटमेंट पैटर्न रिप्रेजेंट करता है, लास्ट कॉलम ऑफ ट्रूथ टेबल। सो वो लास्ट कॉलम का ट्रूथ वैल्यू अगर दोनों डिफरेंट स्टेटमेंट पैटर्न्स के सेम हो, बात ठीक से याद कीजिए,
दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स के ट्रूथ टेबल सेम ट्रूथ वैल्यूज अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। मीन्स दीज टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। उसमें कनेक्टिव सेम नहीं होंगे, स्टेटमेंट्स में भी सेम पी क्यू और आर एस, यू कैन से पी क्यू आर एटसेट्रा, बट कनेक्टिव्स आर डिफरेंट। स्टेटमेंट्स होंगे फिर भी कनेक्टिव्स डिफरेंट होंगे, फिर भी अगर उन्होंने सेम ट्रूथ वैल्यू रिप्रेजेंट कर दिए तो वो आएगा लॉजिकल इक्विवेलेंस। टू डिफरेंट स्टेटमेंट पैटर्न्स, टू डिफरेंट स्टेटमेंट पैटर्न्स A and B, if they represent same truth tables, then they are called logically equivalent. They are called logically equivalent and represented by, कैसा रिप्रेजेंट करेंगे इसको? A is equivalent to B. This is also we have already seen this symbol of equivalence. A is equivalent to B, दोनों के दोनों ने सेम ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट कर दिए, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए और इसको बोलते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। अभी हम पढ़ते हैं टोटोलॉजी। टोटोलॉजी देखिए, एक स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया हुआ है। सपोज वी कंसीडर P ज्वाइन निगेशन P, P ज्वाइन निगेशन P। हमने कुछ कनेक्टिव यूज कर दिए हैं, लॉजिकल प्राइम्स कुछ यूज कर दिए हैं, पी क्यू P यूज किया हुआ है, और इसका ट्रूथ टेबल अगर हम फाइंड करेंगे, सपोज P हियर इज निगेशन P एंड वी फाइंड P ज्वाइन निगेशन P। देखिए एक ही स्टेटमेंट है P, सो अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला, यस, 2 raised to number of statements. How many statements are there? Only one statement is there, so 2 raised to 1 is 2. So there are only two number of rows, 50% out of those two, one is true and one is false. Now negation of true, it is false, and negation of false, it is true. अभी P join negation, P join means or disjunction। अभी डिसजंक्शन का ट्रूथ वैल्यूज क्या पता है हमें? दोनों के दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, सो ट्रू और फॉल्स दैट इज ट्रू, एंड फॉल्स और ट्रू इज अगेन ट्रू। अगर हम देखेंगे तो इसका लास्ट कॉलम जो है, ये ट्रूथ टेबल का लास्ट कॉलम जो है वो हमें ऑल द ट्रूथ वैल्यूज ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। सी द लास्ट ट्रूथ वैल्यूज और ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम, दीज आर ऑल ट्रू। मतलब जब एकादा स्टेटमेंट पैटर्न सभी के सभी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा हो अकॉर्डिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स और ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस, वी कैन से लास्ट कॉलम जो है P ज्वाइन निगेशन P, हमारा स्टेटमेंट पैटर्न जो है वो लास्ट कॉलम रिप्रेजेंट करता है हमेशा, और वो लास्ट कॉलम अगर सभी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू रिप्रेजेंट करता हो तो उसको हम कहेंगे ये टोटोलॉजी है। इफ द ट्रूथ table of a statement pattern represents all truth values true for all possible combinations of logical primes and connectives. It's called a tautology. We represent tautology by small t.
small t, tautology. So for example, first one, p join negation p, you can write down the truth table also. Second one, contradiction. कॉन्ट्रैडिक्शन, अभी अभी हमने देखा अगर कोई ट्रूथ वैल्यू, कोई टेबल ऑल ट्रूथ वैल्यूज ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसको हम टॉटोलॉजी बोलेंगे। तो अगर एक आधे ट्रूथ टेबल ने सभी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स रिप्रेजेंट कर दिए, सो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैडिक्शन। इफ द ट्रूथ वैल्यू of a statement pattern represent all truth values false, then it is called, what it is called, as a contradiction, and contradiction is represented by small c. For example, let's see the example again. For example, p meet with negation p. Let's form the truth table p negation p and p meet negation p. So true, false. Negation of p is false, again negation of false is true, so here is false and false. So that is the truth value of contradiction. All the truth values are false in the last column of that statement pattern, so that is called as the contradiction. And finally, third one, contingency. ये सीधी सी बात है, इफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट पैटर्न is neither tautology nor contradiction, then it is called contingency. अगर ट्रूथ टेबल का लास्ट कॉलम टॉटोलॉजी भी नहीं है, कॉन्ट्रैडिक्शन भी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे कंटिंजेंसीज। मतलब हमने जो स्टेटमेंट पैटर्न्स देखे थे, कंजंक्शन का टेबल हमने देखा था, डिसजंक्शन का देखा था, निगेशन का देखा था, कंडीशनल का देखा था, बाय कंडीशनल, ऑल दीज वेयर द कंटिंजेंसीज बिकॉज दे डजंट रिप्रेजेंट्स ऑल ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू और ऑल ट्रूथ वैल्यूज आर फॉल्स। मतलब कॉन्ट्रैडिक्शन भी नहीं है और टॉटोलॉजी भी नहीं है, तो उसको बोलेंगे कंटिंजेंसी। उसको क्या बोलेंगे? कंटिंजेंसी बोलेंगे। आप इसका रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके नोटबुक में राइट डाउन कीजिए।